Okay guys, so now we are going to cover these three topics today. First of all, we are going to understand how you can make a use of a loops in PHP. Okay, and in this we are going to understand how you can implement a while and a for loop in PHP. Then we are going to understand how you can connect PHP with the MySQL database server. And then we are going to understand how to select data from the MySQL table and display the table. So let's get started with our first demo, and in this demo we are going to understand the concept of looping techniques in PHP. So first of all I would like to discuss what exactly a loops कि loops actually में होते क्या है. Often when you write code you want the same block of code to run over and over again in a row. Instead of adding several almost equal code lines in a script, we can use loops to perform a task. Okay, let's say यहाँ पर क्या ना मैंने example लिया. Consider a scenario where I told you to print your name 10 times. Okay, let's say आप लोगों को अपना name 10 बार print करना है. अगर अभी हम कन्वेंशनल अप्रोच फॉलो करें तो कन्वेंशनल अप्रोच ये रहेगी कि यू आर गोइंग टू राइट एको 10 टाइम्स. तो कितनी बार आप लोगों को एको लिखना पड़ेगा? यू नीड टू राइट एको 10 टाइम्स इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ टास्क. लेट्स से चलो ठीक है 10 टाइम्स आप लिख सकते हो. मैंने यही थोड़ा सा सीरीज बढ़ा दी. मैंने बोला कि 50 टाइम्स प्रिंट करो, 80 टाइम प्रिंट करो, या लेट्स से 100 टाइम प्रिंट करो. तो देन यू कैन रियलाइज कि कितनी एको स्टेटमेंट्स आपको लिखनी पड़ेगी. ओके, और यहाँ पर आप कर क्या रहे हो? सेम टास्क बार बार ही हमारा रिपीट हो रहा है. तो whenever you want to execute some block of code to run over and over again in a row, you can make a use of a loop. Okay, हम क्या use करेंगे? We are going to make a use of a loops. In PHP we have the following looping statements. Okay, तो PHP में जो आपको loops मिलेंगे वो actually 3 कैटेगरी के हैं. Basically 4 कैटेगरीज की है. चौथी कैटेगरी we are going to understand when we will be going to understand the concept of an arrays. Okay, so let us say अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे about the while loop, do while loop and a for loop. Okay, these 3 loops we are going to understand today. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द while loop. तो while loop एक्चुअली में क्या करता है? while loop loops through a block of code as long as the specified condition is true. So while keep executing its body until its condition is true. When the condition of while will become false, while will going to terminate its body. Then we are going to implement do while loop practically. What this do while loop will do? This do while loop will guarantee that it will execute at least once. Okay, in simple term if I tell you do while आपका एक बार execute होगा ही होगा. ऐसा क्यों? Because do while पहले अपनी body execute करता है और बाद में अपनी condition को check करता है. Okay, then we are going to make a use of this for loop. Okay, for loop क्या करेगा? It will loop through a block of code a specified number of times. Okay, and then we are going to understand one important loop, and the name of that loop will be for each loop. Okay, in PHP if I tell you this for each we are going to make a use. Okay, तो for each के बारे में भी हम discuss करेंगे. So basically it loops through a block of code for each element in an array. So in simple term if I tell you we will be using this for each loop when we are going to understand the concept of an arrays. So चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं with a for loop. Okay, we are going to understand the concept of for loop. तो for loop में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये आपके ब्लॉक ऑफ कोड को नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स लूप करेगा, मतलब बार बार चलाएगा. If I show you the diagram of this for loop, this is going to be the diagram of your for loop. In order to make a use of a for loop, हम सबसे पहले initialization लेंगे. After initialization, we are going to make a use of one condition, and this for loop will keep iterating until its condition will become true. तो जैसे इसकी condition true होगी, हम एक statement execute कराएंगे और statement के बाद we are going to increment and decrement. Okay, we are going to increment and decrement our respective value. और ये increment decrement कराने के बाद फिर से condition check करेगा, condition still true तो आपकी statement फिर से execute. Now somehow let's say मेरी condition अब false हो गई.
जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप आपका एग्जिट हो जाएगा। ओके, so let me just tell you the syntax of using this for loop and how you can practically implement this for loop in a PHP programming. So let me just show you. For this I'm going to make a use of a new file. तो मैंने यही आकांक्षु शिवांक वाला प्रोजेक्ट लिया हुआ है। I'm going to right click onto this, go to new, and I'm going to create a new PHP file. तो here I'm going to give this a file name, or let's say file को हम name दे देते हैं for loop.php. Okay, save this file with the extension of .php. Click on next, click on finish, और यहाँ पर आपके canonical tags बन के आ जाएंगे इतने। I'm just going to close my PHP tag, and here we are going to implement for loop. ओके, तो लेट अस से सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉर लूप का सिंटेक्स। फॉर लूप में लेट अस से इन ऑर्डर टू मेक अ यूज ऑफ अ फॉर लूप, आप यहाँ पर एक इनबिल्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हो, और उस कीवर्ड का नेम भी क्या है, फॉर। इन फॉर लूप फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्पेसिफाई द इनिशियलाइजेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक वेरिएबल बना लिया आई के नाम से। इन PHP वी नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल विद अ डॉलर साइन, तो मैंने यहाँ पर डॉलर साइन का यूज किया। इस वेरिएबल आई को मैंने 1 वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या देनी है, एक कंडीशन। आफ्टर इनिशियलाइजेशन यू हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशन। तो कंडीशन मैंने दी आई लेस देन इक्वल टू 10। दिस इज गोइंग टू बी माई कंडीशन, एंड देन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस इंक्रीमेंट एंड अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फॉर दिस डेमो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर. And what this increment operator will do, it is used to increment the value by 1. इसके बाद curly brace से definition start और definition खत्म। तो here in this curly braces you are going to write the code which you want to execute again and again. Let us say मैंने यहाँ पर अभी सबसे पहले लिख दिया echo, I'm going to print the value of this I. अभी चलो फिलहाल इतने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो what exactly we are going to do, we are going to print a counting from 1 to 10. इस एग्जांपल में हम क्या करने वाले हैं, we are going to print the counting from 1 to 10. तो यहाँ पर इसको कराते हैं सेव। मेक श्योर कि आपका वैम्प एक्टिवेट होना चाहिए। मेक अ यूज ऑफ योर लोकल होस्ट। तो लेट मी जस्ट ओपन। ओके, नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय लोकल होस्ट। विद इन दिस लोकल होस्ट वी हैव अ फोल्डर नेम्ड एज PHP। इसके अंदर ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, और ये रही हमारी फाइल जो अभी हमने एग्जीक्यूट करी है। सो नाउ यू कैन सी दैट वी आर एबल टू गेट द काउंटिंग फ्रॉम 1 till 10। ये लिखा हुआ आ गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स मेक इट मोर रीडेबल। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि लेट्स से जैसी मेरी आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, मेक अ यूज ऑफ डॉट, एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ वन BR टैग। ओके, तो मैंने बताया था कि HTML के टैग्स को PHP में स्पेसिफाई करने के लिए आप echo का यूज कर सकते हो और डबल कोट्स का आप यूज कर लो। क्लिक ऑन सेव ऑल। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। नाउ इट इज मोर मीनिंगफुल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई। अब यही काम अगर मैंने आपको बोला होता कि विदाउट फॉर लूप यूज करो, तो आपको पता है कि echo आपको कितनी बार लिखना पड़ता, 10 टाइम्स। और अगर फिर ये मैंने बोल दिया होता कि चलो ठीक है अब 50 टाइम्स तक की काउंटिंग प्रिंट करो, देन व्हाट यू नीड टू डू, अब आपको ये लिखना पड़ता काउंटिंग टिल 50। echo मतलब आपको 50 बार प्रिंट करना होता। तो यहाँ पर बस आपने कितना लाइन ऑफ कोड लिखा है, हार्डली 2-3 लाइन ऑफ कोड आपने लिखा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस फॉर लूप। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस फॉर लूप। वर्किंग को ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ से इसको मैंने किया कॉपी, and I'm going to make a use of my paint, and within this paint let's say मैं ये टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको चलो पेस्ट कर देते हैं, ये वाला। तो देखो फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है। ओके, ड्राई रन। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि फॉर लूप में सबसे पहला जो रोल होता है वो होता है आपके इनिशियलाइजेशन का। सबसे पहला रोल किसका होगा, इनिशियलाइजेशन का। इसके बाद जो दूसरा रोल होगा वो होगा आपकी कंडीशन का। तो दिस इज गोइंग टू बी माई आवर सेकेंड रोल। थर्ड रोल किसका होगा, आपकी फॉर लूप की बॉडी का। तो दिस इज गोइंग टू बी थर्ड। और फोर्थ किसका होगा, फोर्थ आपका होगा यहाँ पर आपकी कंडीशन।
सॉरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये दिस इज हाउ योर फॉर लूप एक्चुअली वर्क्स। तो चलो अब समझते हैं कि कंपाइलर इसको किस तरीके से समझता है। तो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस कलर एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स। तो कंपाइलर को सबसे पहले एक आई नाम का वेरिएबल मिला इनिशियलाइजेशन पार्ट। देखो मैंने नंबर 1 किस पे लिखा हुआ है, नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन पे। कंपाइलर को सबसे पहले एक वेरिएबल मिलेगा सॉरी फॉर द कंपाइलर वर्ड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर विल गोइंग टू हैव दिस वेरिएबल आई एज 1। उसको ये मिल गया एक वेरिएबल आई जिसकी वैल्यू आपने क्या दी हुई है 1। फिर आपका इंटरप्रेटर क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा कंडीशन क्या 1 मतलब आई में क्या है 1 ही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या 1 आपका लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन क्या है ट्रू, बाकी में एक हमारा 10 से छोटा है। इसके बाद वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेगा, सबसे पहले वो अपनी बॉडी को प्रिंट करेगा। थर्ड देखो कहाँ पे लिखा हुआ है एको डॉलर आई में, और यहाँ पर एको का मतलब क्या होता है प्रिंट करना, तो ये 1 को प्रिंट कर देगा और यहाँ पर आपके लिए br मतलब एक लाइन का स्पेस दे जाएगा। अब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी, तो अब यहाँ पर आई क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई है 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। फिर से कंडीशन चेक होगी क्या 2 आपका लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन क्या है मेरी ट्रू, और जैसे आपकी कंडीशन ट्रू होगी ये अब आप क्या प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 1 से 2 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने उसको इंक्रीमेंट कर दिया था। अब फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, जैसे स्टेटमेंट को प्रिंट कर लिया अब इंक्रीमेंट पे आएगा, इंक्रीमेंट करते ही आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, करेक्ट, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब कंडीशन क्या चेक होगी कि 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, अभी भी मेरी कंडीशन है ट्रू, और जैसे आपकी कंडीशन ट्रू होती है फॉर लूप तब तक अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक उसकी गिवन कंडीशन ट्रू रहती है। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 3, इस तरीके से 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं जब 10 हो जाएगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब भी 10 हो जाएगा। 10 प्रिंट करने के बाद अब आपके आई की वैल्यू हो गई इंक्रीमेंट, तो लेटर से अब मेरा आई हो गया 11। अब कंडीशन चेक होगी कि क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, ना तो ये लेस देन है ना ये इक्वल टू है। अब आपकी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर फॉल्स। ओके, अब ट्रू से कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी फॉल्स, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फॉर लूप अपनी बॉडी से बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर फॉर लूप। और जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उस डायग्राम के भी अंदर यही फ्लो लिखा हुआ था कि पहले इनिशियलाइजेशन, फिर आपकी कंडीशन, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अगर आप लोगों को इसकी वर्किंग समझ में आ जाए ड्राई रन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आप लोग स्टार पैटर्न्स बना सकते हो, फॉर लूप के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन सॉल्व कर सकते हो। आपको बस इसका वो पता होना चाहिए कि ड्राई रन किस तरीके से होता है, हाउ योर फॉर लूप एक्चुअली वर्क्स। इफ यू नो देन यू कैन इम्प्लीमेंट एनी प्रोग्राम इन फॉर लूप। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं। Let us say now what I need to do is using this for loop I want to print the table of a number. Table of a number. Table of a number let's say, बताओ कौन सी टेबल नहीं आती 17, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 17 इंटू 117, कुछ इस तरीके से लेट से मेरे को टेबल प्रिंट करनी है। और ये कब तक प्रिंट करूँगा, लेट अस से 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170। तो ये टेबल ऑफ अ नंबर मेरे को प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। चलो करके देखते हैं। सेम फॉर लूप है ना, वो जैसे मैंने बताया था कि आपको अगर अपना नेम 10 बार टाइम प्रिंट्स करना हो, तो लेट से मैं ये भी दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर यश लिख दूंगा 10 बार, तो यहाँ पर 10 बार यश लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, तो चलो अब हम अपना ऑब्जेक्टिव पहले अकम्प्लिश करते हैं। इसी को थोड़ा सा बस मैं मैनिपुलेट करूँ। सारा खेल किसका है, एको का, क्योंकि आपको पता है कि आए तो आपको ये वाली वैल्यू दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 10 तक 1 आपको 10 तक आए आपको प्रिंट करके दे देगा। अब लेटेस्ट से मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक है ना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डॉलर नम के नाम से, और इस नम के अंदर लेट से मैंने डाल दिया 70। तो वेरिएबल हैज टू बी डिक्लेयर विद द डॉलर साइन, तो डॉलर नम इज इक्वल टू 70। अब यहाँ पर एको पे आते हैं। एको में सबसे पहले मैंने एज इट इज लिख दिया डॉलर नम। कंकैटिनेशन करानी है तो मैंने कंकैटिनेशन के लिए यहाँ पर एक दे दिया एक्स का साइन, फिर यहाँ पर कंकैटिनेशन करा दी मैंने आई की वैल्यू, फिर यहाँ पर कंकैटिनेशन करा दी इज इक्वल टू, और फाइनली यहाँ पर अब मैंने करा दिया डॉलर
num into डॉलर। ओके, अब देखो कि ये फॉर लूप किस तरीके से चलेगा। कंपाइलर को सबसे पहले एक नम मिल गया जिसकी वैल्यू क्या इनिशियलाइज है 17। फिर कंपाइलर को एक आई नाम का वेरिएबल मिल गया जिसकी वैल्यू क्या है आपकी 1। इसके बाद कंडीशन चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। इंटरप्रेटर के लिए ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पर नम प्रिंट कर देगा। नम के अंदर क्या 17 लिखा हुआ आ जाएगा, इंटू इस तरीके से लिखा आ जाएगा, आई के अंदर 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू नम इंटू आई। अगर आप 17 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो क्या आ जाएगा 17। अब आपके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन क्या है मेरी बिल्कुल ट्रू है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा नम इंटू आई, और नम में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 इंटू 2, और इधर यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा 17 इंटू 2। ओके, एंड यू विल बी गोइंग टू हैव 34। इस तरीके से आपका लूप कब तक चलता रहेगा 10 तक चलता रहेगा। तो चलो अब इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर एक और मैं कंकैटिनेशन दे देता हूँ, और वो कंकैटिनेशन मैं देता हूँ br के लिए, ताकि एक नई लाइन के स्पेस के अंदर ये आ जाए, हर बार एक ब्रेक रो होती रहे। तो सेव ऑल पे करते हैं क्लिक। नाउ लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस, और यू विल बी गोइंग टू हैव योर टेबल। ओके, तो ये आप फॉर लूप को इस तरीके से वर्क कर सकते हो। ओके, यू कैन वर्क इन अ फॉर लूप in this way. Understood? All you just need to do is you just need to understand the working of your for loop. आपको उस for loop की वर्किंग समझ में आनी चाहिए, that's it. अब यहीं पर है ना, आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो। HTML का एक फॉर्म बनाओ, $_post से उस इनपुट टैग से वैल्यू निकाल लो और फिर उसको इस $num के अंदर पास कर दो। तो सेम प्रोग्राम आप यूजर से नंबर लेके भी बना सकते हो इन PHP, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर टास्क। ओके, तो क्या टास्क रहेगा आप लोगों का, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी योर टास्क। फॉर्म बनाने का HTML का पेज बनाना, इसके अंदर लिख देना यहाँ पर एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। इसके बाद यहाँ पर अब आप ले लेना एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको एक नेम दे देना, और यहाँ पर आप एक बटन ले लेना, इस बटन पे लिख देना जनरेट टेबल। इस बटन पे आप लोग एक टेक्स्ट सेट कर देना जनरेट टेबल, और जैसे इस बटन पे क्लिक करें यहाँ पर उसकी टेबल जनरेट कर देना यूजिंग फॉर लूप। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी योर टास्क नंबर 1। तो इस वीडियो में आपको मैं टास्क बताता भी चलूंगा एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस। दिस इज गोइंग टू बी योर टास्क 1। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर ना एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, और उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। ओके, नेस्टेड फॉर लूप। तो फॉर लूप की अगर मैं बात करूं तो यू विल बी गोइंग टू हैव वन मोर कॉन्सेप्ट, एंड द नेम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, अब देखो नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। जब आपको फॉर के अंदर एक और फॉर एग्जीक्यूट करना पड़ जाए। नेस्टेड फॉर लूप किन सिनेरियोज में हम लोग यूज करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू डील विद मल्टी डायमेंशनल एरेज। ओके, नेस्टेड फॉर लूप कब हम लोग यूज करते हैं, इन नेस्टेड फॉर लूप को आप मान के चलो मल्टी डायमेंशनल एरे में हम यूज करेंगे। स्टार पैटर्न्स आप लोगों ने देखे होंगे, स्टार पैटर्न कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, अभी तक कंपनियां पूछती हैं कि स्टार पैटर्न जनरेट करके दो। स्टार पैटर्न आप बहुत इजीली जनरेट कर सकते हो इफ यू आर अवेयर ऑफ हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट फॉर लूप। अगर आपको फॉर लूप की ड्राई रन पता है तो स्टार पैटर्न आप बना सकते हो। तो चलो ये एग्जांपल हम करके भी देखते हैं। यूजिंग दिस नेस्टेड फॉर लूप आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस स्टार पैटर्न। ओके, ये वाला नहीं बना रहा, ठीक है, ये वाला मैं एक बार बनाऊंगा स्टार, फिर यहाँ पर ये वाला स्टार स्टार, एंड फिर ये स्टार पैटर्न। चलो हम हमको बनाना, ये आपके मल्टी लाइन कमेंट्स से इनको इग्नोर कर देना, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये रहेगा। ठीक है, दिस स्टार आई वांट टू प्रिंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे। मानोगे तुम लोग ये वाला, ठीक है ना, ये वाला बस हमको बनाना है। ओके, तो लेट मी जस्ट शो यू हाउ यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस नेस्टेड फॉर लूप। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ BR का यूज कर लेता हूँ, ताकि एटलीस्ट 4 BR यूज कर लेता हूँ। And here we are going to implement nested for loop. अब देखो nested for loop के लिए सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया for,
तो सबसे पहले क्या था हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट, तो मैंने यहाँ पे ले लिया $x, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। इस $x को लेट अस से फॉर अ व्हाइल मैंने अभी चला दिया लेस देन इक्वल टू 7 एंड देन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ $x प्लस प्लस, ये वाला। अब इसी लूप के अंदर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एन अनदर लूप एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज योर नेस्टेड फॉर लूप। तो यहाँ पे मैंने ले लिया फॉर $y इज इक्वल टू 1, $y लेस देन इक्वल टू $x, और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया $y प्लस प्लस। Okay, and here what I'm going to do is I'm just going to print this echo के अंदर लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार, और ये जैसे मेरा ये echo बंद हो रहा है इसी के बाद ये मतलब जैसे मेरा नेस्टेड फॉर लूप बंद हो रहा है इसी के बाहर मैंने लिख दिया br। अभी आई विल टेल यू कि ड्राई रन क्या है इस वाले फॉर लूप का। तो ये मैंने एक फॉर लूप दिया नेस्टेड फॉर लूप, मेक अ यूज ऑफ दिस डॉलर यूज नहीं करोगे तो एरर आएगा। ओके, तो ये ध्यान दे लेना कि जहां पर भी वेरिएबल यूज करोगे वेरिएबल हैज टू बी डिक्लेयर विद $। ये मिस्टेक करते हैं बच्चे काफी ज्यादा कॉमन। तो जैसे इसको सेव ऑल पे क्लिक करेंगे, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश दिस एंड नाउ यू कैन सी दैट यू आर एबल टू गेट योर स्टार पैटर्न। ओके, यहाँ पर आपका ये स्टार पैटर्न बनकर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इसकी ड्राई रन समझते हैं कि ये जो आपने लिखा ये एक्चुअली वर्क किस तरीके से कर रहा है। तो जिनको समझ में आ गया वेल एंड गुड, those who are not able to understand, अब ये पेंट से को ध्यान से समझना कि ये स्टार पैटर्न किस तरीके से आ गया। एज यू नो द वर्किंग ऑफ योर नेस्टेड फॉर लूप की आप लोगों को वर्किंग पता ही है ना, बस इसी का हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आउटपुट किस तरीके से आया। ओके जी, तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला फॉर लूप है, तो यहाँ पर इसको लेट से मैं नेम देता हूँ 1, इसी तरीके चलेगा। पहला इनिशियलाइजेशन चेक करेगा, फिर अपनी क्या करेगा कंडीशन चेक करेगा, और तीसरी स्टेटमेंट में इस फॉर लूप को ये उसकी बॉडी मिलेगी, और इसकी जो बॉडी है वो कब तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इस वाले फॉर लूप की बॉडी। और फोर्थ टाइम पे ये अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, इतना आपको पता है। ठीक है, इतना ये चलेगा और फोर्थ टाइम फिर ये अपनी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। अब यहाँ पर भी ये लूप है तो यार ये लूप इसी तरीके से चलेगा। तो इस वाले फॉर लूप का ये 1 है, ये इसके लिए सेकेंड पार्ट है, ये इसके लिए थर्ड पार्ट है, और ये इसके लिए फोर्थ पार्ट है। तो चलो अब देखते हैं कि कंपाइलर किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेगा। देखते हैं कि PHP ने इसको किस तरीके से समझा। तो PHP को सबसे पहले एक वेरिएबल मिला x नाम का, इस x के अंदर इसको क्या वैल्यू मिली 1। फिर इसने चेक किया क्या 1 आपका लेस देन इक्वल टू 7 है, क्या आपका 1 छोटा है 7 से, कंडीशन क्या है हमारी ट्रू है। तो फिर अभी x प्लस प्लस नहीं करेगा, ये अपनी बॉडी के अंदर आएगा। अब जैसे ही ये वाला ऊपर वाला फॉर लूप अपने इनर फॉर लूप के अंदर आया तो यहाँ पर उसको उसकी बॉडी के अंदर क्या मिला, एक और फॉर लूप। अब आपके PHP को यहाँ पर एक और वेरिएबल मिला y जिसकी वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पर अब आपने क्या कंडीशन चेक करा रखी है y लेस देन $x लेस देन इक्वल टू $x। तो अभी आपके y की वैल्यू भी क्या है, y की वैल्यू भी 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 1, चलो लेस देन नहीं तो कम से कम इक्वल टू तो है। तो अब इसकी कंडीशन ट्रू है, और जैसे इसकी कंडीशन ट्रू होगी ये आपके लिए क्या प्रिंट करके दे रहे स्टार। ओके, स्टार प्रिंट करके दे देगा। जैसे ही अपनी थर्ड स्टेटमेंट खत्म करेगा ये फोर्थ स्टेटमेंट पर जाएगा, y की वैल्यू क्या कर देगा प्लस प्लस, तो y विल बिकम 2। अभी चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन क्या है फॉल्स, और जैसी फॉल्स होगी ये वाला फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दिस टाइम दिस फॉर लूप विल नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होते ही आपने इसको क्या दिया हुआ एक ब्रेक रो, तो BR आपके इतना काम कर जाएगा। अब ये लूप खत्म हो गया। अब चलो जैसे ही इसकी बॉडी खत्म होगी तीसरा, अब फोर्थ स्टेप क्या आएगा, x की वैल्यू आपकी प्लस प्लस होगी, तो x विल बिकम 2। अभी चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 7 है, कंडीशन क्या है मेरी ट्रू, और जो लूप एक बार खत्म हो चुका होता है वो दोबारा वहीं से स्टार्ट होगा, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 1। तो फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन क्या है ट्रू, और जैसी कंडीशन ट्रू है यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा एक स्टार। अब सबसे पहले इनर लूप पहले खत्म होगा तो y की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 2। अब ये फिर चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन क्या है ट्रू, और यहाँ पर आपने कहीं पे BR तो दिया नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये स्टार पैटर्न आपके लिए प्रिंट कर देगा। अब y की वैल्यू होगी 3, फिर ये चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन क्या फॉल्स, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी यहाँ पर BR फिर आपके लिए एक नया देता चला जाएगा।
समझ में आ गया कि किस तरीके से आपका फॉर लूप चलता रहेगा एंड फाइनली जैसे जैसे आप इसको ड्राई रन करते रहोगे यू विल बी गोइंग टू हैव दिस आउटपुट, आप लोगों को ये वाला आउटपुट समझ में आ जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन मेक अ यूज ऑफ अ नेस्टेड फॉर लूप। ओके, तो आपको फॉर लूप भी समझ में आ गया और आपको मैंने नेस्टेड फॉर लूप भी बता दी। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द व्हाइल लूप। So I'm just going to create a new PHP file and I'm going to give this a name while loop.php. Next, and I'm going to click on finish. ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना डिफरेंस समझना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ व्हाइल लूप एंड अ फॉर लूप। ओके, व्हाइल लूप भी यही काम करेगा कि अगर आपका ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड हो जो आपको बार बार रन कराना है तो आप व्हाइल लूप का यूज कर लो। फॉर लूप भी यही काम कर रहा है। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ व्हाइल लूप एंड अ फॉर लूप। डिफरेंस क्या है आपका व्हाइल लूप में और आपका फॉर लूप में। देखो डिफरेंस क्या होता है कि व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नॉट फिक्स्ड। Okay, so you are going to make a use of a while loop when number of iterations are not fixed. For loop को है ना iteration बतानी पड़ती है कि कब तक चले। Okay, for loop को बताना पड़ता है कि जब number of iteration fix होते हैं कि 10 बार चलाना है, 20 बार चलाना है या 30 बार चलाना है, make a use of a for loop. When number of iterations are not known, जब आपको नहीं पता कि number of iterations कितनी है, तो in that scenario one should make a use of a while loop. अब इसका ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल आता है जिसके अंदर हमको ये नहीं पता कि कब तक चलाना है। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट एग्जाम्पल इन अ प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच से समझेंगे कि किस सिनेरियो में आपको व्हाइल लूप का यूज करना पड़ सकता है। इससे पहले चलो व्हाइल लूप का ना एक बेसिक हायरार्की पहले आप समझो कि हाउ दिस व्हाइल लूप एक्चुअली वर्क्स। तो व्हाइल लूप पे सबसे पहले आ जाती है इनिशियलाइजेशन। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया आई और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया विद द वैल्यू 1। ठीक है, इसके बाद यू नीड टू मेक अ यूज ऑफ दिस व्हाइल लूप। तो व्हाइल एक रिजर्व्ड कीवर्ड है और अब यहाँ पर इसकी आएगी कंडीशन। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी व्हाइल डॉलर आई लेस देन इक्वल टू 10, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। तो कंडीशन व्हाइल लूप के अंदर आएगी। इसके बाद हियर यू नीड टू राइट द स्टेटमेंट विच यू वांट टू प्रिंट। तो मैंने यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट लिख दी एको कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डॉलर आई की वैल्यू को करना है प्रिंट। और इधर लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस br एज वेल। ओके, सॉरी फॉर दिस br आप यहाँ पर यूज कर लेना एंड देन आई एम गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ माई आई। ओके, तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आ जाएगा आपका इनिशियलाइजेशन, फिर आपका आ जाएगा कंडीशन, फिर आपकी स्टेटमेंट विच यू वांट टू प्रिंट एंड देन आई प्लस प्लस। और जैसे ही आप इसको करोगे सेव ऑल, ठीक है, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी हमने एक और नई फाइल बनाई है व्हाइल लूप के नाम से एंड यू विल बी गोइंग टू हैव द सेम आउटपुट 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग ये आपको प्रिंट करके दे देगा। इस एग्जांपल से ना अभी आपको समझ में नहीं आएगा व्हाइल लूप और फॉर लूप के बीच में डिफरेंस। अब इसके बाद जो एग्जांपल करेंगे इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ व्हाइल लूप एंड अ फॉर लूप। And in order to implement this example, what we need to do is we have to make a use of a PHP 7 version. Okay, अभी जो आप लोग Eclipse यूज कर रहे हैं ना उसके अंदर एक्चुअली 5.6 वर्जन है। तो either you need to update this Eclipse और what you can do is कि आप एक ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर लो। ओके, तो चलो ये वाला जो एग्जांपल हम करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर में कर लेते हैं। तो ओपन योर टैब क्रोम पे, फायरफॉक्स पे, सफारी पे, जो भी आप यूज करो, ओपन वन न्यू टैब and here just write PHP 7 online compiler. Okay, एक नया मेथड है इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा एंड फॉर दैट मेथड वी नीड PHP 7 compiler. तो आप यहाँ पर एक बार इतना लिख दो PHP 7 compiler। तो लेट मी जस्ट, चलो यही वाला यूज कर लेते हैं, writephponline.com. Okay, we are going to execute, we are going to make a use of this IDE, online IDE एक writephponline.com. So we will be using this IDE. In this demo, what exactly we are going to do is we are going to make a use of a while loop, and in this while loop we are going to solve one problem। और वो problem क्या है, to check
whether an entered number is palindrome or not. This we are going to understand. We are going to check whether an entered number is a palindrome or not. अभी palindrome number क्या होता है? Let's say ये आपका palindrome number होता है. आपका एक नंबर है 1 to 1, आप इसको रिवर्स करो. रिवर्स करने के बाद भी इसका क्या आएगा? 1 to 1. तो ये palindrome नंबर है 1331. इसको आप रिवर्स करो, क्या आएगा? 1331. तो ये आपका palindrome नंबर है. लेट अस से ये 1 2 3 4 5, इसको रिवर्स करो 5 4 3 2 1. ये आपका पैलिंड्रोम नंबर नहीं है. तो जब मैं जो नंबर रिवर्स करने के बाद भी सेम आए तो दैट इज कॉल्ड एज अ पैलिंड्रोम नंबर. ओके, तो ये वाला प्रोग्राम मेरे को एग्जीक्यूट करना है. अब इस प्रोग्राम के अंदर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाएंगे. अब देखो, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप लोग इसके अंदर सीखोगे वो आप सीखोगे कि किसी भी नंबर को ना रिवर्स किस तरीके से करते हैं. ओके, द फर्स्ट डेमो विच यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर देयर इज कि आप लोग किसी भी नंबर को रिवर्स किस तरीके से करते हैं. फिर हम क्या करेंगे कि जैसे इस नंबर को रिवर्स करेंगे फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये ओरिजिनल नंबर से मैच करता है मेरा रिवर्स नंबर. अगर तो करता होगा तो वो पैलिंड्रोम नंबर होगा, एंड इफ इट इज नॉट तो देन इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर. तो here what we need to understand is, सबसे पहले हमको एक ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा कि ये मेरा नंबर है ना रिवर्स होकर आ जाए. तो PHP के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन भी है, बट वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दैट इनबिल्ट फंक्शन. वी नीड टू राइट आवर ओन कोड. और ये कोड के अंदर हम क्या लिखेंगे कि हाउ यू कैन रिवर्स दिस नंबर. सपोज करो कि मेरे पास नंबर क्या है 1 2 3 4 5. ठीक है, तो चलो इसी नंबर को हम ले लेते हैं. हमारे पास नंबर क्या है 1 2 3 4 5. अब इस नंबर को सबसे पहले आप करोगे रिवर्स. अब देखो रिवर्स किस तरीके से करें. अगर मैं इस नंबर को ओके मॉड करा दूं 10 के साथ, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता है हमको? रिमाइंडर. अगर आप इस नम को मॉड करा दो किसके साथ? 10 के साथ, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेट अस से मेरे पास यहाँ पर एक है ना रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा. इंस्टेड ऑफ दिस नम मैं यहाँ पर एक वेरिएबल नाम देता हूँ रिमाइंडर. तो चलो पेंट में ये करते भी चलते हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वन. तो ये मेरा एक नंबर है, ड्राइंग पे ध्यान मत देना भाई. 1 2 3 4 5. तो व्हाट दिस मॉड विल डू, मॉड विल एक्चुअली गोइंग टू गिव यू द रिमाइंडर. अब आपने इसको कर दिया 10 से, तो लेट्स से यहाँ पर हो गया 10 1 10. यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गया आपका 2, ये 3. तो यहाँ पर फिर आपने किया 10 2 20. ओके, यहाँ पर आपने कर दिया इसको 20. फिर आपका ये आ गया 3 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. फिर आपने यहाँ पे कर दिया लेट से 3. फिर ये हो जाएगा आपका 30 4 कैरी फॉरवर्ड 5 4 40. एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर रिमाइंडर. ओके, एंड दिस इज व्हाट आई नीड. ओके, तो अगर आप इस नंबर को 10 से मॉड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5. ठीक है, तो चलो रिमाइंडर अब आपके पास निकल कर आ गया. अब हमको एक है ना लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार तो अगर हम मॉड निकालते रहेंगे तो हमको 5 ही मिलता रहेगा. अब हमको एक ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कि लूप की जरूरत नजर आ रही है. सेम टास्क बार बार परफॉर्म करना है मेरे को. फिर ये भी निकालना होगा, फिर मेरे को ये भी निकालना होगा, फिर ये 2 निकालना होगा, फिर 1 निकालना होगा, एंड सो ऑन. ठीक है, तो लेट अस से देखते हैं. अब यहाँ पर बताओ कि नंबर ऑफ आइटरेशन अगर मैं फॉर लूप यूज कर रहा होता तो क्या लिखता? नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी लिखते? फॉर लूप. चलो आपने सब इतना पता लगा लिया कि इस प्रोग्राम के लिए ना मेरे को एक लूप चाहिए. अब कौन सा लूप आप यूज करोगे? फॉर लूप. फॉर लूप के अंदर क्या कंडीशन दोगे? आपका नंबर 3 वर्ड का भी हो सकता है, 3 डिजिट्स का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है, यूजर 7 डिजिट भी डाल सकता है. तो फॉर लूप मैं यहाँ पर प्रेफरेबल नहीं मानता. तो इन दैट एग्जाम्पल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल बी यूजिंग व्हाइल लूप. अब फिर व्हाइल लूप भी कब तक यूज करें? तो देखो व्हाइल लूप के अंदर मैंने एक कंडीशन लगा देनी है कि व्हाइल. ठीक है, लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस. तो मैं यहाँ पर क्या ना व्हाइल लूप यूज कर लूंगा. इसको ना मैं व्हाइल लूप के अंदर लिख दूंगा. मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डॉलर व्हाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0. कि आप ये लूप तब तक चलाते रहो जब तक आपका नंबर नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो जाता.
तो अब आपने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे लेटर से अब आपने करली ब्रेसेस ओपन कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर करली ब्रेसेस बंद कर लिया। तब आपका ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है, बार 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 बार। बट ऐसा करने से है ना बार बार होता क्या रहेगा कि नम मॉड 10 ये तो हर बार 5 ही देता रहेगा। तो अब लेट से अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक और कंडीशन, वेरिएबल इज रेफर टू समथिंग दैट कैन चेंज। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, तो ये डिवाइड क्या करेगा, ये आपको देता है क्वोशिएंट, तो यू विल बी गोइंग टू हैव दिस वैल्यू। तो मॉड तो आपको दे देगा ये वाली वैल्यू, ठीक है, मॉड तो आपको दे देगा ये वाली वैल्यू, बट ये जो क्वोशिएंट है डिवाइड ये आपको दे देगा 1 2 3 4 वैल्यू। तो अब आपके नंबर की वैल्यू यहाँ पर हो गई अपडेट, यहाँ पर नंबर की वैल्यू हो गई अपडेट, और फिर से ये चेक करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको एक बार करके। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो सबसे पहले से चेक किया क्या 1 2 3 4 5 नॉट इक्वल टू 0 है। अब नॉट इक्वल टू 0 क्या कहता है, सेम पे तो ये दे देगा आपको ट्रू, सॉरी सेम पे तो ये दे देगा आपको, ओके आई मिस्टेकली मैंने क्लीन कर दिया, तो नॉट अ प्रॉब्लम, मैं यहाँ पर एक बार इसका यूज कर लेता हूँ। तो ये समझ में आ गया कि मॉड करोगे तो 5 आ जाएगा और नंबर डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस न्यू, ओके। सो हियर वी आर, तो हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पर एक वाइल लूप दिया और वाइल लूप को मैंने चलाया नम नॉट इक्वल टू 0। फिर अभी हमने यहाँ तक कितनी स्टेटमेंट लिख दी थी, वो मेरा रिफ्रेश हो गया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिमाइंडर हमने निकाल लिया था नम मॉड 10, और यहाँ पर आपने नम की वैल्यू अपडेट कर दी थी नम डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे देखो कि नॉट इक्वल टू क्या करेगा कि नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 5 नॉट इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन होगी। अब देखो ये करता क्या है, सेम पे तो देता है फॉल्स, ओके। ये जो आपका है ना कि जैसी वैल्यू दोनों सेम होगी तो दे देगा फॉल्स, और अगर आपकी वैल्यू डिफरेंट होंगी, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 डिफरेंट है 0 से, तो डिफरेंट पे तो ये दे देता है ट्रू, तो डिफरेंट पे क्या दे देगा ट्रू। तो वाइल के लिए जैसी कंडीशन ट्रू होगी अब आपका वाइल लूप बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर के अंदर आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा 5, और अब आपका नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4। फिर से चेक करेगा वाइल, अब नम की वैल्यू अपडेट होगी तो यहाँ पर अब आपके नम की वैल्यू रिसीव होगी 1 2 3 4 नॉट इक्वल टू 0। तो डिफरेंट पे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट पे ये आपको दे देगा वैल्यू ट्रू, तो जैसे ये अलग है ये अलग है तो डिफरेंट पे दे देगा ट्रू। अब रिमाइंडर में आपका निकल कर आ जाएगा नम मॉड 10, तो अब आपका नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब आपका रिमाइंडर यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा 4। अब लेटेस्ट से कि 5 कहाँ गया फिर, ओके, तो ये क्या करेगा कि 5 को हटा देगा और 4 को यहाँ से रिप्लेस करा देगा। अब देखो कि यहाँ पर क्या है, मैंने कंडीशन दे दी एक और, मैंने यहाँ पे चलो कंडीशन दी सम इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब चलो एक बार दोबारा से इसको समझ के करते हैं कि ये कंडीशन आपके लिए क्या करेगी। तो लेटेस्ट से अभी हमारे पास नंबर क्या है 1 2 3 4 5, तो इसने चेक किया 1 2 3 4 5 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगी ट्रू, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट पे नॉट इक्वल टू क्या देता है, ऑब्वियसली बात है हमेशा ट्रू देता है। तो जैसे ही ट्रू हो जाएगा अब आपका रिमाइंडर के अंदर क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी नम मॉड 10 5, यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा सम। सपोज करो कि सम मैंने ऊपर है ना 0 से इनिशियलाइज किया हुआ, तो सम इंटू 10 0 इंटू 10 0 इंटू 10 से कितना होगा 0 0 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 5, तो सम कितना हो गया आपका 5। ये जो सॉल्व होगा सपोज करो सम ऊपर क्या है 0, तो 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर 5, तो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 5 ही आएगा, तो सम पे आ गया 5। और फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा नम आपने अपडेट कर दिया, नम आपने कर दिया 1 2 3 4। अब ये वाइल लूप फिर से चलेगा। अब वाइल लूप कब तक चलता रहेगा जब तक उसी गिवन कंडीशन ट्रू है, बट इस टाइम इसको नंबर क्या रिसीव होगा 1 2 3 4, इसको यहाँ पर क्या नंबर रिसीव होगा 1 2 3 4। अब रिमाइंडर क्या निकल कर आ जाएगा, अगर आप 1 2 3 4 को मॉड करोगे 10 के साथ तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा 4, तो रिमाइंडर आके निकल कर आ गया 4। अब देखो सम की वैल्यू अभी पहले आइटरेशन में क्या हो चुकी थी 5, तो अभी कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा 5
इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर अभी आपका क्या निकल कर आया 4। इसको सॉल्व करो कि क्या आएगा 5 इंटू 10 50, 50 प्लस 4 54, और आपका नम कितना हो जाएगा 1 2 3। ओके, अब फिर से वाइल लूप चलेगा। अब वाइल लूप को 1 2 3 4 की जगह नम की अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, और वो अपडेटेड वैल्यू क्या मिलेगी 1 2 3। 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन मेरी ट्रू है। अब रिमाइंडर क्या निकल कर आ जाएगा 3, और अब क्या निकल कर आ जाएगा सम मेरा क्या हो चुका था सेकंड आइटरेशन में 54 इंटू 10, और अब रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 4 3, और ये नंबर हो गया आपका 12। फिर से चलो यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर 12 मॉड 0, रिमाइंडर क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 2। अब 5 4 30 इंटू 5 4 3 इंटू 10 प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 5 4 3 2। तो देखते जा रहे हो कि आपका नंबर रिवर्स होता जा रहा है सम के अंदर, और अब आपका नंबर बचा 1, तो 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। अब यहाँ पर देखो 1 मॉड 10, तो जब यहाँ पर कुछ ये वाली कंडीशन आ जाती है ना 1 मॉड 10, तो अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड से क्या हो छोटी हो, तो मॉड आपको क्या निकाल के देते हैं लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ही। ओके, कभी करके देखना कि जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड से छोटी हो तो मॉड हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ही देगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 1, और अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 4 3 2 इंटू 10 प्लस 1, अब कितना हो जाएगा 5 4 3 2 1, हो गया आपका नंबर रिवर्स, और अब आपका ये क्या बचेगा 0, और जैसे यहाँ पर आ जाएगा 0 नॉट इक्वल टू 0, जैसे ये दोनों क्या होंगे सेम होंगे, सेम पे ये क्या देता है फॉल्स वैल्यू, और वाइल लूप आपका टर्मिनेट। तो पहली बात तो अब ये बताओ कि वाइल लूप पे ये समझ में आया कि आपका ओरिजिनल नंबर यहाँ पर सम में रिवर्स हो गया 1 2 3 4 5 था, यहाँ पर क्या हो गया 5 4 3 2 1। ये किसी भी नंबर पे करके देख लेना। ओके, ये आपका टास्क भी रहेगा, ये ड्राई रहेगा, किसी भी नंबर पे करके देख लेना, या मैनुअली भी सॉल्व कर लेना एक बार पेन रजिस्टर पेन पेपर लेके, जस्ट सॉल्व दिस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। अब चलो इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर में लिख देते हैं। तो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस वेरिएबल डॉलर num 1 2 3 4 5, एक और वेरिएबल लेता हूँ सम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक वाइल लूप दे देते हैं, वाइल num नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पर हम बॉडी एग्जीक्यूट करा देते हैं वाइल लूप की। तो सबसे पहले तो एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर नम को मॉड करा देते हैं 10 के साथ। फिर यहाँ पर लेटर से हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, और मैंने ले लिया सम, यहाँ पर क्या था डॉलर सम इंटू 10 प्लस डॉलर रिमाइंडर। फिर यहाँ पर एक और ले लेते हैं डॉलर नम इज इक्वल टू, वी हैव टू अपडेट द वैल्यू ऑफ दिस नम मॉड 10, और यहाँ पर वी आर गोइंग टू प्रिंट एन एको नंबर आफ्टर रिवर्स, और ये जो नंबर आफ्टर रिवर्स होगा वो आपके सम के पास सेव होगा। ठीक है ना, इससे पहले हमने एक और एको भी देते हैं। ओके, क्योंकि सम के पास ही तो आपका वेरिएबल वो सेव होगा ना, तो मैंने सम की वैल्यू यहाँ पर लिखवा दी। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, एंड दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। तो जैसे ही आप इसको एक बार करते हैं रन, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको एक सेकंड, यहाँ पर एक्चुअली एरर नहीं दिखाया, बट लेट मी शो यू। इफ आई ट्राई टू कॉपी दिस, ओके, मैं यहाँ पे इसको एक बार कॉपी कर रहा हूँ और इस बार एक्लिप्स पे एक बार मैं पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान से देखना, तो लॉजिक सेम रहेगा, और यहाँ पे लेट्स से इसको कर देते हैं रिफ्रेश। ओके, मैंने कहीं पे मिस्टेक किया, लाइन नंबर 6, लेट्स से मैंने कहीं पे डॉलर नम शायद छोड़ दिया है, लाइन नंबर 6 यहाँ पे मिस्टेक करें डॉलर। ओके, अभी देखो कि नंबर आफ्टर रिवर्स में ना आपको मिलेगा कि इन्फिनिटी का एरर, इन्फिनिटी का इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, ये ना आपको वैल्यू फ्लोट में देता है। पीएचपी का एक छोटा सा ड्रॉबैक है इस ऑपरेटर का, ये वैल्यू ना आपको फ्लोट में देता है। कैसे, अगर मैं चलो यहाँ पर आपको प्रिंट भी करके दिखा दूँ फॉर अ वाइल, लेट्स से एको डॉलर नम, लेट्स से फॉर अ वाइल, ठीक है ना, आप ऐसा करके देखना मत, मेरे यहाँ पे एक बार आप देख लो।
तो ये देख सकते हो ये कुछ है ना इस तरीके की वैल्यूज, आपको कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज यहाँ पर रिटर्न करा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो डिवीजन है ना एक्चुअली ये कुछ है ना फ्लोट वैल्यू रिटर्न करके दे देता है, खासतौर से ये वाला कॉन्सेप्ट। तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज हियर यू कैन मेक अ यूज ऑफ एन इनबिल्ट फंक्शन, और उस इनबिल्ट फंक्शन का नेम होता है आपका इनिट डिवीजन। ओके, तो यहाँ पर एक इनबिल्ट फंक्शन हम यूज करेंगे इंट डिवीजन का। नाउ व्हाट दिस इंट डिवीजन विल डू, ये देखो PHP 7 में ना इन्होंने एक नया फंक्शन निकाला जिसका नेम दिया इन्होंने इंटीजर डिवीजन। ओके, बट वी आर गोइंग टू राइट दिस int div. Now what is the full form of this int div? It stands for the integer division. तो यहाँ पर आपको किस तरीके से यूज करना पड़ेगा इस इनबिल्ट फंक्शन का, आप यूज करना किसको किससे डिवाइड करा रहा है ये बस आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना होगा, और जो फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर इस तरीके की ना फ्लोट वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो लेट्स जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस इंट डिवीजन। तो यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर, it won't work on this Eclipse but it will going to work on let us say PHP 7 compiler। ओके, तो यहाँ पे लेटेस्ट से बस अब आप कर देना कि $num, 10। ओके, and I'm going to just remove this। ओके, कंट्रोल A कॉपी, यार चलो इतना ही मैं एक बार लिख लेता हूँ, कंट्रोल A, सॉरी मैं इतना एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C and I'm going to paste it over there। Let me run this code। और यहाँ पे देखो अब आपके पास आ जाएगा नंबर आफ्टर रिवर्स 54321। कितना करना है बस आपको यहाँ पर इंट डिवीजन वाले फंक्शन का यूज कर लेना, क्योंकि नम डिवाइड बाय 10 ना फ्लोट वैल्यू देता है, बट यहाँ पर अब आपका नंबर आफ्टर रिवर्स आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर कोई सा भी नंबर डालो, लेट से मैंने यहाँ पे डाल दिया 121। इसको दोबारा से रन कोड कराते हैं तो नंबर आफ्टर रिवर्स आ जाएगा आपका 121। अब हमको बस कितना कोड लिखना है, वी आर गोइंग टू क्रॉस चेक कि $num अगर $sum के बराबर है तो पैलिंड्रोम नंबर है, वरना नहीं। तो यहाँ पे लेटेस्ट से इसी एको br को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इधर एक और br देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन का यूज कर लेता हूँ, इफ $number इज इक्वल टू $sum। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एको br, और इसके अंदर मैं लिख दूँ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है जी, और वरना एल्स के अंदर इसी एको को कर लेते हैं कॉपी और लिख देते हैं नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो अगर आपका $num जो आपका ओरिजिनल नंबर है सम से मैच हो गया तो पैलिंड्रोम नंबर है बेटा, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर है। अब कितने कहते हैं कि ये वाला प्रोग्राम हमारा वर्क करेगा? अकॉर्डिंग टू मी इट वोंट वर्क। कैसे? लेट मी जस्ट शो यू। तो नंबर मेरा 1 to 1 है, चलो पहले मैं ले लेता हूँ एक नंबर बड़ा वाला 1 2 3 4 5 6। इसको रन कोड करते हैं, लिखा आगे नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल नंबर था 1 2 3 4 5 और आपने नंबर आफ्टर रिवर्स कर दिया 6 5 4 3 2 1। चलो तो एक पैलिंड्रोम नंबर बताओ 1 to 1। ओके, तो चलो 1 to 1 डालते हैं और अब इसको एक बार रन कोड करते हैं। जैसे आप इसका रन कोड करोगे ये स्टिल आपको क्या देगा, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप है ना नम को सम से कंपेयर करा रहे हो और आपका नम पता है क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। वेरिएबल इज रेफर टू समथिंग दैट कैन चेंज। ठीक है, और यहाँ पर ये जो अब आपका नंबर वाला वेरिएबल है ये आपका चेंज हो चुका है। ओके, तो देखो अब इसका फिर सॉल्यूशन क्या है। अब इसका देखो सॉल्यूशन यही है कि आपने ना नंबर को खुद 0 किया, वेरिएबल इज रेफर टू समथिंग दैट कैन चेंज, तो नंबर आपने खुद 0 किया तभी तो आपका फिर वाइल लूप कंडीशन से बाहर होगा। तो यहाँ पर है ना अगर मैं चलो इसको आपको मैं दिखाई देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम, कंट्रोल C कंट्रोल V और यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट से नंबर आफ्टर रिवर्स मैंने नंबर को प्रिंट कर दिया फॉर अ वाइल नंबर। तो खुद देखना कि नंबर ना आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा, नंबर आफ्टर रिवर्स 0 और आफ्टर रिवर्स 1 to 1। ये 1 to 1 तो चलो सम के अंदर स्टोर है, बट नंबर की वैल्यू हो गई 0 और अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यू आर कंपेयरिंग 0 विद 1 to 1। तो ऑब्वियसली बात है कि 0 को अगर 1 to 1 से कंपेयर कराओगे तो ऑब्वियसली आपको आंसर क्या मिलेगा, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो देखो यहाँ पे इसको अवॉइड कराने के लिए ना मैं क्या करता हूँ कि इधर एक है ना वेरिएबल बना दो $, कॉपी के नाम से,
और हमेशा है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें राइट हैंड साइड से वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, तो नम की वैल्यू मैंने किसके अंदर इनिशियलाइज करा दी, कॉपी के अंदर। राइट हैंड साइड से वैल्यू ऑलवेज गॉन ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड। अब अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे कॉपी को छेड़ा नहीं छेड़ा, और कॉपी के अंदर एक्चुअली में वैल्यू क्या है 1 to 1 की है। तो यहाँ पर अब आप क्या करो कि लेट मी जस्ट रिमूव दिस लाइन हियर नाउ, इंस्टेड ऑफ दिस नम मैं यहाँ पर cpy लिख सकता हूँ, कॉपी वाला वेरिएबल, क्योंकि नम की वैल्यू कॉपी वाले वेरिएबल में है। अब आप जब कोड को रन कराओगे, नाउ दिस टाइम यू विल बी गोइंग टू हैव द करेक्ट आंसर कि पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, चलो एक और नंबर चेंज करके देख लेते हैं, 1331 डाल के देख लेते हैं, 1331। रन दिस कोड, you will be going to have palindrome number। और अगर कोई palindrome number नहीं है, let me just write some random value, run code, तो you will be going to have number after reverse this and it is not a palindrome number। So this is how you can make a use of a while loop। और while loop का यहाँ पर practical example ये है कि while loop में आप यहाँ पर ना तो मेरे को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देने की नीड पड़ी, ओके, ना ही कंडीशन दी, बट कंडीशन में ना नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स नहीं है। ओके अब यहाँ पर नंबर आपका 7 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है, बट इन while loop number of iterations are not mandatory, number of iterations not known, make a use of while loop। so this is how you can accomplish this code। और ये जो आपका कोड है ये है आपका while loop का। ओके तो चलो अब हम नेक्स्ट लूप के बारे में समझते हैं। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, या मैं काम करता हूँ इस वाले कोड को कंट्रोल ए कॉपी इधर कर देते हैं प्लीज। हालांकि ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एक्चुअली ये मेरा जो कंपाइलर है ना PHP 5.6 है, जो वर्जन है ना PHP वो 5.6 है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस एंड व्हाइल लूप, तो यहाँ पर ये इन डिवीजन को अभी सपोर्ट नहीं करता बिकॉज इट इज अ फंक्शन अवेलेबल इन PHP 7। तो ऑनलाइन कंपाइलर का आप यूज कर लो एंड यू विल बी गोइंग टू हैव योर आउटपुट, बट यू कैन राइट इट ओवर देयर इन ऑर्डर टू सेव इट फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस। अब देखो यहाँ पर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अवर नेक्स्ट लूप एंड द नेम ऑफ दैट लूप इज अ डू व्हाइल लूप। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू PHP फाइल एंड आई एम गोइंग टू गिव इट अ नेम एज अ डू व्हाइल loop dot php। click on next, click on finish। now let's just understand this do while loop। अब do while loop मैंने आपको बताया था कि do while loop एक ऐसा loop होता है which actually execute at least once। ओके ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अपनी ना कंडीशन बाद में चेक करता है, बट इससे पहले जो हमने अभी लूप्स पढ़े फॉर लूप एंड while लूप, ये लूप अपनी बॉडी के अंदर तब एग्जीक्यूट करेंगे या अपनी बॉडी को कब एग्जीक्यूट करेंगे जब इनकी गिवन कंडीशन ट्रू होती है। बट ऐसा केस है ना डू व्हाइल के साथ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सिंटेक्स ही ऐसा बनाया हुआ है। तो देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक है ना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया $i1, फिर मैंने यहाँ पे लिखा डू के अंदर लेट अस से मैंने लिख दिया एको $i, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैंने लेट से दिया $i प्लस प्लस, यहाँ पर चलो मैं एक बार br भी दे देता हूँ, जिसमें का यूज ऑफ दिस br टैग, और फिर यहाँ पर मैंने while दिया, और while के अंदर आपकी कंडीशन है कि $i लेस देन इक्वल टू 10। और यहाँ पर इस बार है ना while लूप को यूज करने के लिए आपको सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा। ओके while लूप को यहाँ पर अब इसका ये सिंटेक्स होता है कि इससे पहले वाले while लूप में अगर आपने देखा हो, मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया था, बट हियर यू नीड टू राइट द सेमीकोलन। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है, बट इन डू while लूप you need to write this semicolon। So let me just click on save all and let us just test this application। So here I'm going to refresh my project। This is our do while loop file and you will be going to have your counting। okay, तो ये आपका करेक्ट सिंटेक्स है do while loop का। अब अगर मैं इसी कंडीशन फॉल्स कर दूं, मैंने बोला कि मेरा i है ना बड़ा होना चाहिए 10 से, ये तो नहीं है क्योंकि i मेरा 1 है, तो इसको सेव ऑल करते हैं। बट एक ऐसा लूप है जो एक बार तो चलेगा ही चलेगा, तो दिस टाइम यू विल बी गोइंग टू हैव वैल्यू 1। एंड व्हाई दिस इज सो, क्योंकि इसका सिंटेक्स अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। PHP को यहाँ पर एक वेरिएबल मिला i जिसकी वैल्यू है 1, और PHP को यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन मिली टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ i, तो वो आराम से 1 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई i++, और इसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है। कंडीशन आप देख रहे हो लेट बाइंडिंग हो रही है, कंडीशन थोड़ा बाद में चेक हो रहा है, बट इससे पहले आपका $i प्रिंट हो चुका होगा, 1 यहाँ पर आपको आउटपुट में नजर आ जाएगा। सो डू while loop is one kind of a loop which is going to execute at least once।
Okay, now we are going to understand one more loop, and that loop will be for each loop. For each loop, ध्यान से समझना for each loop को किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो डू वाइल लूप समझ में आया कि डू वाइल लूप क्यों एक बार चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले प्रिंट हो चुका है और उसके बाद अपनी कंडीशन को चेक कर। ओके, तो चल किन सिनेरियोज में डू वाइल को एक्चुअली हम यूज करते हैं। सही क्वेश्चन पूछा। जब आपको यूजर से चॉइस पूछनी हो कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस या नो, अगर यस दाबे तो चल जाए और नो प्रेस करे तो आपका एग्जिट हो जाए। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, उन सिनेरियोज में डू वाइल लूप का आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, नाउ दैट्स फाइन। सो हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ वन न्यू फाइल, और इस फाइल का नेम रहेगा आपका फॉर ईच। For each loop.php. In order to understand this for each loop, one should be aware of the concept of an array. और array क्या होता है? Array is nothing but it is a sequence, और चलो sequence से भी अच्छा है, collections of elements. Collection of elements. Okay, जब आपके पास एक वैल्यू ना हो, you want to hold multiple values, तो we are going to make a use of an array. इन PHP, इन ऑर्डर टू डिक्लेयर एन एरे, आपको एक इनबिल्ट फंक्शन का भी यूज करना पड़ता है, और उस इनबिल्ट फंक्शन का नेम भी क्या है? एरे। तो यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस फंक्शन इन ऑर्डर टू मेक अ यूज ऑफ एन एरे इन PHP प्रोग्रामिंग। तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पे लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स के नाम से। ओके, और इधर मैंने लिख दिया क्या, लेट अस से मेक अ यूज ऑफ दिस एरे, और यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स डलवा दिए। लेट्स से वी हैव 34, एक बच्चे के 34 आए, 32 आए, 37 आए, 26 आए, ठीक है, 28 मार्क्स आए, 19 आए, ठीक है, 39 आए, ठीक है, आउट ऑफ 50, ठीक है। चलो ये कुछ मार्क्स मैंने अब यहाँ पे डलवा दी। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि एको $marks, नॉट पॉसिबल टू प्रिंट। इसको सेव किया, यहाँ पर इसको कर देते हैं रिफ्रेश अपने प्रोजेक्ट को। ये हमारा फॉर ईच लूप है। यू विल बी गोइंग टू हैव एन एरर, ठीक है ना। आपको इतना तो प्रिंट होकर आ जाएगा कि एको की $marks क्या एक एरे है, बट यू विल बी गोइंग टू हैव एन एरर ऑन लाइन नंबर 8। और लाइन नंबर 8 में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, मतलब यू कैन नॉट प्रिंट एरे लाइक दिस। ओके, 8 में आप ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते। इसने ये तो बता दिया कि एक एरे है, बट एरे के कंटेंट को प्रिंट करके नहीं दिया। तो देयर आर टू पॉसिबल वे, आइदर यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ फॉर लूप, या एक और भी कंडीशन यूज कर सकते हो कि मैंने बोला कि मार्क्स का 0th इंडेक्स प्रिंट कर दो, आ जाएगी 34 मार्क्स। फिर मैंने बोला कि मार्क्स का 1 प्रिंट कर दो। ऐसा कितनी बार मैं एको एको लिखता रहूं, तो इसके लिए अब हम यूज करेंगे फॉर लूप का। तो चलो पहले मैं फॉर लूप से बता दूं, और फिर हम इसी प्रोग्राम को समझेंगे फॉर ईच लूप के थ्रू। तो फॉर एक वेरिएबल ले लिया $i इज इक्वल टू 0। 0 से क्यों इनिशियलाइज किया, बिकॉज एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ 0। अब यहाँ पर एक कंडीशन पूछेगा कि i लेस देन कब तक, i लेस देन कब तक। तो यार मैनुअली तो मैं काउंट नहीं करूंगा कि 1 2 3 4 5 6 7। तो चलो एक बार मैनुअली काउंट भी कर लेते हैं, 7। फिर मैं आपको इसकी भी एक और अप्रोच बताऊंगा, $i प्लस प्लस। फिर यहाँ पे मैं लिखा कि एको $marks और प्रिंट कर दो ith इंडेक्स, एंड आई एम गोइंग टू कॉन्कैटिनेट विद दिस br। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि i की वैल्यू आपकी मार्क्स का 0th प्रिंट हो जाएगा, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे, ओके, अनडिफाइंड इंडेक्स ऑन लाइन नंबर 10, ओके ओके, सॉरी मैंने यहाँ पर ये आपका कर दिया $i। ओके, वी नीड टू पुट $i ओवर देयर, एंड लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 7 इसलिए क्योंकि ऑफसेट से बाहर है, तो यहाँ से ये हटा देना, लेस देन इक्वल टू। तो मैंने कंप्यूट कर लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 एरे इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट। तो यहाँ पर अब आपके एरे इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर एक और मैं आपको फंक्शन बताता हूँ जिससे ना आपको मैनुअली काउंट नहीं करना पड़ेगा। अभी तो चलो हम काउंट कर सकते हैं। कंसिडर अ सिनेरियो जब यहाँ पर लेट्स से 50 से भी ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, कितना काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या ना, इनबिल्ट फंक्शन का यूज करते हैं, एंड द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज काउंट। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया काउंट, okay, and here I'm going to make a use of this function count। और किसको काउंट करना है, यहाँ पर अब आप कर दो मार्क्स। तो मार्क्स के अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे
ये फंक्शन उनको काउंट कर लेगा और किस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दे, डॉलर काउंट। और यहाँ पर ना अब आप डॉलर काउंट दे दो विदाउट एनी इशू। तो काउंट मार्क्स क्या करेगा, पूरा काउंट बता देगा किसके अंदर 7 है, तो वो 7 इन्फॉर्मेशन काउंट के अंदर आ गई। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी आपने, डॉलर आई लेस देन इज इक्वल टू डॉलर 7। तो जैसे अब आप इसको रिफ्रेश करोगे, ओके सॉरी आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश दिस, सेम आउटपुट अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मैंने कोई एलिमेंट डिलीट भी किया तो मुझे यहाँ पर अब चेंज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस मुझे यहाँ पर एलिमेंट डिलीट करना होगा एंड माय प्रोग्राम विल वर्क फाइन। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से ना आप एक और भी लूप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिंट दी एरे एलिमेंट, और वो होता है आपका फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप का सिंटैक्स इज फार बेटर देन योर फॉर लूप एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। कैसे, मैंने यहाँ पे फॉर ईच का यूज किया, यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने बनाया डॉलर, लेट्स से मैंने एक एआर नाम का वेरिएबल बनाया डॉलर, ये चलो वैल्यू बना दो, डॉलर वैल्यू इन डॉलर मार्क्स। सॉरी यहाँ पे एक बार मैंने थोड़ी सी गलत अप्रोच फॉलो करी, ये थोड़ा सा इस तरीके से डॉलर मार्क्स एज, यहाँ पर एक कोई भी वेरिएबल ले लो, लेट्स से मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर बस अब आप कर दो एको डॉलर वैल्यू and I'm going to concatenate this with br, ठीक है जी। और यहाँ पर एक बार इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, या चलो इधर मैं br देता हूँ ताकि आप दोनों को डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ जाए, एको br, ठीक है, थोड़ा सा लाइन स्पेस हम यहाँ पर दे देते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेव ऑल, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस पेज। तो यहाँ पर आप देखो कि सेम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आ गई फॉर ईच के थ्रू। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप ने क्या किया कि आपके एरेज की इंफॉर्मेशन को कैसे फैच करा लिया एज डॉलर वैल्यू। अभी फॉर ईच लूप कब तक चलता रहता है, अंटिल एंड अनलेस इट विल गोइंग टू रीच द लास्ट एलिमेंट। फॉर ईच लूप कब तक चलता रहेगा, अंटिल एंड अनलेस इट विल गोइंग टू रीच द लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहले आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 34 यहाँ पर हो जाएगी प्रिंट, फिर एक और बार आइटरेशन करेगा, नेक्स्ट वैल्यू को रीड करेगा, नेक्स्ट वैल्यू वो आगे इसके 32, फिर 32 को प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू को रीड करेगा। ये कब तक रीड करता रहेगा और कब तक प्रिंट करता रहेगा, अंटिल एंड अनलेस इट विल गोइंग टू रीच द लास्ट एलिमेंट। एंड द मोमेंट द फॉर ईच लूप विल गोइंग टू रीच द लास्ट एलिमेंट, ये अपनी बॉडी को कर देता है टर्मिनेट। ओके, so this is the concept of our loops in PHP. Okay, so thanks for watching.